आम इंतखाबात 2019 के लिए तमिलनाडु में आज इंतखाबी मंशूर जारी करने का दिन था, जहां पर रियासत की दोनों ही अहम जमातों ने अपने अपने मंशूर में आंजहानी वजीर आजम राजीव गांधी के कातिलों को रिहा कराने का वादा किया है। बीजेपी के इत्तेहाद वाली एआईएडीएमके ने पार्टी का मंशूर जारी करते हुए आवामी फलाह के कई दावे किए। सीएम पलानीसामी और डिप्टी सीएम के अलावा दीगर लीडरान ने बचे हुए कामों को पूरा करने का वादा किया, तो वहीं कांग्रेस इत्तेहाद वाले जमात और अपोजिशन लीडर एमके स्टालिन ने भी अपने पार्टी का मंशूर जारी किया। इस मौके पर पार्टी लीडरान ने दावा किया कि गुज़िश्ता सालों में बदहाल रियासत को वो बनाने का काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ डीएमके की हामी जमात एमडीएमके ने मरकज और रियासती हुकूमत को रियासत के लिए बदनुमा दाग बताया। कर्नाटक में सीट शेयरिंग के बाद कुछ सीटों को लेकर तनाजुक के बीच आज कांग्रेस जेडीएस लीडरान एक साथ नजर आए और इस मौके पर साबिक पीएम एचडी देवगौड़ा ने कहा कि वोटिंग के बाद सभी रियासती जमातें एक साथ आएगी। मरकजी हुकूमत को आवाम मुखालिफ बताते हुए देवगौड़ा ने कहा कि वे कांग्रेस या क़यादत में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस लीडर दिनेश गुंडूराव ने कहा कि 22 मार्च तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा, जबकि 31 मार्च को बेंगलोर में एक मुश्तरका रैली होगी जिसमें पार्टी सदर राहुल गांधी और साबिक पीएम देवगौड़ा के अलावा दोनों ही जमात के अहम लीडरान मौजूद रहेंगे। महागठबंधन will be finally going to come to a proper shape only after the parliament election is over. Each state has got its own problem and you can't expect everything what is going on in Karnataka on the same line. You can't expect. Every state has got their own regional leadership. That regional leadership cannot be minimized by any national party, including Bharatiya Janata Party. In every state, the regional leadership cannot be undermined. There the situation is different in each state. That is why the people who are fighting against Bharatiya Janata Party or its allies, they will all come together after the parliament election. Then there will be unity in all the secular forces. Certainly, so what Modi is going to make a mockery on Mahagathbandhan will come true and he will have to face the parliament. Candidates will be deciding on 21st. 21st, I think by 22nd morning should be out. And JDS also, I think by then they will also decide. So that is shouldn't be a problem. And what about rallies? See, we told 31st March will be the. We have tentatively now confirmed 31st March for a big, more than 5 lakh people to gather at a massive rally in the outskirts of Bangalore, covering up 3-4 parliamentary constituencies, which will be addressed by Rahul Gandhi ji and Devegowda ji, Siddaramaiah ji, Kumar Swamy ji, all of us. So that will be a very big show of unity and kind of kicking off. We have already started our campaigns individually, but with the senior most leaders and a national president, it will kickstart the entire election campaign. So that's one thing. Then there will be joint meetings all across Karnataka. आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआर कांग्रेस को केसीआर की बी टीम बताया है। एक आवामी रैली के दौरान नायडू ने तेलंगाना सीएम के सहारे जगनमोहन रेड्डी को निशाने पर लिया। आंध्र प्रदेश को तकसीम के जिम्मेदार के तौर पर कहे जाने वाले केसीआर की जगनमोहन की जो नजदीकियां हैं, उसको देखते हुए नायडू ने यह मुद्दा उठाते हुए वो नजर आए और इस दौरान नायडू ने मोदी हुकूमत को रियासत मुखालिफ करार दिया। उन्होंने 2014 में किए गए वादे को याद दिलाते हुए उन पर जमकर हमला बोला। ఢిల్లీలో మళ్లీ మనమే ప్రధానమంత్రి ఎవరు కావాలో నిర్ణయించే స్థాయికి మనమే ఉంటామని మరొకసారి తెలియజేస్తున్నా। అదే గాని 2-3 సీట్లు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచినా కేసీఆర్ కి బి టీమ్ గా ఉంటుందని వాళ్ళు చేసేది ఏమీ ఉండదు। ఢిల్లీకి వెళ్లి కేసీఆర్ నిన్నే మాట్లాడుతున్నాడు, నేనేదో చక్రం తిప్పుతానని। అసలు చక్రం ఉంటే కదా తిప్పడానికి। నరేంద్ర మోడీ తరపున చక్రం తిప్పుతున్నారు మీరు। నరేంద్ర మోడీ అడ్రస్ గల్లంతు కావడం ఖాయం।
ఆయన ప్రధానమంత్రిగా ఉండరు, చిత్తుగా ఓడిపోతారు. దేశమంతా వ్యతిరేక గాలి వీస్తా ఉంది. इलेक्शन कमीशन के लाख दावों के बीच नफरत भरे तशहीर का माहौल जारी है। नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद भी एक दिन पहले यहां पर मजहब की बुनियाद पर खुलेआम हिमायत मांगी गई। एक रिपोर्ट देखिए। चुनाव का तो हमें गौ हत्यारों को जिताना है या गौ रक्षकों को जिताना है, आपके हाथ में है। अब की बार मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आपका हक है। धन्यवाद। इश्ताल अंगेज से लबरेज ये अंदाज है तेलंगाना के वाहिद बीजेपी एमएलए राजा सिंह का, जो हैदराबाद में गौरक्षा के तकरीब के दौरान मजहब की बुनियाद पर हिमायत मांग रहे थे। ज्यादा हैरत तो तब हुई जब वहां मौजूद सैकड़ों लोग उनके बयान पर ताली बजा रहे थे। इस दौरान राजा सिंह ने हिंदू और मुसलमानों के बीच दीवार ऊंची करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। देखो समझो तभी कोई चीज खरीदो, किसी गोल टोपी वाले से 1 रुपए की चीज मत खरीदो। जो हिंदू हो उसी के पास से हम कोई भी चीज खरीदे, ये आप सबको कसम खाने की आवश्यकता है मेरे भाई। ये चीज का अगर हम वायरल करेंगे, जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जो गौ सेवा करेगा उसके पास से ही खरीदी करेंगे, अपने व्यक्ति से खरीदेंगे। आम इंतखाबात के दौरान ऐसे बयान तो अक्सर आते रहते हैं, लेकिन कमीशन कार्रवाई के नाम पर खानापुरी करके अपना पल्ला झाड़ लेता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ऐसे लीडरान पर रोक कौन लगाएगा, या तरक्की, तालीम और तिजारत के मजबूती का दावा सिर्फ नारों तक ही सिमट जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल तो सबका साथ सबका विकास पर भी उठता है, जिसमें सबको साथ लेकर चलने की बात कही जाती है। जी सलाम के लिए हैदराबाद से मीर अली बाकरी की रिपोर्ट। यूपी में तशहीर के दौरान दूसरी रियासतों के सियासी लीडरान को भी मुद्दा बनाया जा रहा है, जहां पर मोहब्बत के शहर आगरा पहुंचे वजीर सयाहत महेश शर्मा ने कर्नाटक सीएम पर तंज कसा। तशहीर के दौरान उन्होंने कहा कि यहां पर ममता का डांस और कुमार स्वामी का गाना कौन सुनना चाहता है। अखिलेश यादव और मायावती पर तंज कसते हुए उन्होंने राहुल प्रियंका के लिए भी मुतनाज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया। अगर 35 की 35 जीत जाए तो 272 चाहिए, तो 70 हो गई, 202 कहां से लाएंगे? अगर ममता बनर्जी आके यहाँ कथक नाच करने लगे तो कौन सुन रहा उनकी? बंसी बजाने लगे तो कौन सुन रहा उनकी? अगर कुमार स्वामी कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर यहाँ आके गीत गाने लगे तो कौन सुन रहा उनकी? 72 सीट इनकी, 200 कहां से लाएंगे? आज इन्हीं लोगों ने यहाँ की माटी के किसान के लाल चौधरी चरण सिंह, जो वास्तव में किसानों के मसीहा थे, आज उनकी भी यही दुर्गति करी थी। सरकार बनवा दी, पीछे से तख्ता खींच लिया। ये काम ये चाहते कि ऐसी सरकार बने यहाँ पर। ये मजबूत सरकार नहीं चाहते, ये कमजोर सरकार चाहते हैं। 72 सीट इन दोनों की मिला के सारी जीत जाए तो भी 10-5 भी आ जाए तो बनी मत। और साथ में कहते हैं हम अपने पप्पू का साथ लेंगे। पप्पू, वो पप्पू ही रह गया बेचारा। उस दिन हम भी थे पार्लियामेंट में, सामने मोदी जी बैठे थे, एक लाइन पीछे हम भी बैठे थे। क्या अखबारी साहब में भी पीछे बैठा घायल हो गया। अब वो पप्पू कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो मायावती, अखिलेश यादव, पप्पू और पप्पू की पप्पी भी आ गई है। एमए वहीद को तेलंगाना फाइनेंस कॉर्पोरेशन का एडिशनल चार्ज दिया गया है और इस दौरान उन्होंने रियासत के उर्दू अकादमी की हुसूरियाबियां गिनवाई। उनका कहना है कि रियासती हुकूमत की मदद से अक़लियती तबके के लिए कई स्कीमात चलाई जा रही हैं और वक्त वक्त पर एकेडमी कई तरह की स्कीमें चलाकर लोगों के फलाह के हक में काम करती आई है। लिहाजा इस मौके पर अलग रियासत बनने के बाद से एकेडमी की तरक्की और कामों को भी गिनाया गया। जब से तश्कील रियासत का अमल हुआ 2014 में तेलंगाना का क़ियाम, और फिर उसके बाद से हर साल जश्न तेलंगाना के नाम से जो तक़रीबात मुनक़िद हुआ करते थे हैदराबाद और अज़ला में, उसमें उर्दू एकेडमी का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। वो चाहे चार मीनार के दामन में मुशायरे का इनेकाद हो या खुली कुतुब शाह स्टेडियम में और इंडोर स्टेडियम में गज़लों का प्रोग्राम और दीगर सकाफती प्रोग्राम्स
उर्दू एकेडमी करती थी और लगता था कि सही मानों में तश्कील रियासत हुई है और उसकी याद में ये सारे प्रोग्राम्स हुआ करते थे। तो उर्दू एकेडमी की कारकर्दगी बिल्कुल नुमायां तौर पे वाज़ेह होती थी और उर्दू एकेडमी अपने मकसद में पूरी कामयाब हुई है। उन्होंने सारी जो हुकूमत की स्कीमात थी उनके ऊपर 100% अमलावरी भी किया। सबसे बड़ा काम तो ये है कि मेरे दौर में जो हुआ है वो उर्दू मस्कन का क़याम 14 साल से पेंडिंग थी। वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वहाँ पर जाके उसको मुकम्मल करके उसका इफ्तिताह मैंने करवाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पुराने शहर का एक रविंद्र भारती बन गया। साल महीने के 25 दिन हमारे 2 ऑडिटोरियम से बुक रहते हैं और वहाँ पर तहजीबी सकाफती एक्टिविटीज़ होते हैं वहाँ पर कामयाबी के साथ। और दूसरा काम ये था कि मेरे दौर में जो हुआ वो 60 उर्दू ऑफिसर्स के मैं समझता हूँ कि अपॉइंटमेंट्स, मैं समझता हूँ कि पहली मरतबा महकमे अक़लियती बहबूद में इतने बड़े पैमाने पर अपॉइंटमेंट हुए, जिसकी जिम्मेदारी उर्दू अकेडमी को दी गई थी उस रिक्रूटमेंट की। और हम लोगों ने भरपूर कोशिश की, बहुत मेहनत करके उसको कामयाब किया। मिल्लत के फलाही इदारे HBS हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी सेंटर का आगाज हुआ, जहां पर जरूरतमंद लोगों को मामूली खर्च या फिर मुफ्त इलाज फराहम किया जाता है। एक खुसूसी रिपोर्ट देखिए। राजधानी के मारूफ अस्पताल HBS मिल्लत इस्लामिया के जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ा सहारा माना जाता है। कमजोर तबके के लिए मुफ्त इलाज कराने को लेकर इसकी काफी तारीफ होती रही है। ऐसे में अस्पताल इंतजामिया की जानिब से हार्ट सर्जरी की शुरुआत ने लोगों की उम्मीद बढ़ा दी है। इस काम के लिए अलग से मुकर्रर टीम का कहना है कि ये सहूलियात सभी मज़ाहिब के लोगों को फराहम की जाएगी। हमारा इसमें ये पोजीशन है कि हम गवर्नमेंट के जयदेवा हॉस्पिटल से भी कम कीमत पर हम काम करने के लिए तैयार हैं। कई लोग हैं मिल्लत में और गुरबा में जो 1 लाख भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हम उनसे भी ये कहते हैं कि हम गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं। BPL कार्ड वालों को हम फ्री में करते हैं। BPL कार्ड अगर हो किसी का तो उसका खर्च फ्री में हम करते हैं। छोटे बच्चे, अडल्ट सर्जरीज, ये सारे फ्री में भी करने के लिए हम तैयार हैं अगर BPL कार्ड हो। BPL कार्ड ना भी हो तो हम वही कीमत से करेंगे, 1 लाख रुपए में हम करेंगे इंशाल्लाह। और किसी के पास पैसे नहीं हैं, थोड़े पैसे हैं, 10,000 हैं, 20,000 हैं, 50,000 हैं, आप ज़रूर आएँ, आप लेकर भेजें यहाँ पर। हम अहले खैर हजरात से इन केसेस को रख के फंड्स रेज करके इंशाल्लाह उनको ऑपरेशन करने की पूरी हम कोशिश करेंगे। वाल्व रिपेयर भी हो सकता है, बहुत कम सेंटर्स में वाल्व रिपेयर होता है। वाल्व रिपेयर भी हो सकता है बच्चों, और एओर्टिक सर्जरीज होता है बच्चों में। नीले होते हैं बच्चे, उनका ऑपरेशन हो सकता है। ब्लू बेबीज बोलते हैं, तो उनका ऑपरेशन हो सकता है। होल्स रहते हैं, बड़े बड़े होल्स रहते हैं। अगर हम लोग ऑपरेशन एक लेवल तक नहीं करते हैं तो लाइफ लॉन्ग नहीं कर पाएंगे और बच्चा बचता नहीं है। तो ये ऑपरेशन सब चीज़ यहाँ पर हो सकता है इंशाल्लाह। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, गरीब पेशेंट है जिसके पास पैसा नहीं है, अभी 3-4 लोग अभी इकट्ठे हो रहे हैं पैसे देने के लिए। विद दीज पीपल एंड जैसे डॉक्टर साहब बोला, सोसाइटी एंड हमारा जो एक्सपर्टाइज है, सब मिलेंगे तो कुछ अच्छा काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो कार्डियक एनेस्थीसिया एक डिपार्टमेंट है, सपोर्टिंग डिपार्टमेंट है, परफ्यूजन एक डिपार्टमेंट है हमारा, उसके साथ हमारा फिजिशियन असिस्टेंट, सर्जिकल असिस्टेंट्स का एक ग्रुप है, बाकी बहुत सारे ICU इंटेंसिविस्ट का ग्रुप है। सारे लोग हम लोग मिलके यहाँ पर काम कर रहे हैं। HBS में सरकारी स्कीमात के तहत मुफ्त इलाज भी होता है। मुस्लिम मैनेजमेंट में कार्डियक यानी दिल के अमराज का कोई बड़ा सेंटर नहीं था। ऐसे में इससे लोगों को काफी खुशी देखने में आ रही है। जी सलाम के लिए बेंगलोर से शाहिद काजी की रिपोर्ट।